This episode of VoiceOver पर चर्चा is powered by voicesbazaar.com, India's premium audio agency. But Rick Harrison of Pawn Stars was on another level. I mean, when we met the channel people, they came and they said, never before we have seen this kind of a hysteria जहाँ पे एक dubbed content show के character को इतना ज़्यादा पसंद किया जाए. आपको महाराजा यादव सिंह और पटियाला play करना है. What a coincidence! I mean, I'm born and brought up in that city. पटियाला. Now, in the wildest of my dreams, I imagine कि मुझे ये रोल करने को मिलेगा. आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो हैं या कुछ ऐसे एक्टर्स को जो जब हम लिप सिंक करते कुछ सोशल मीडिया पे देखते हैं एआई के जरिए, तब आप कैसे ये कह सकते हैं कि ये नहीं कर पाए? ये हार्ड वर्क, डेडिकेशन, टन्स ऑफ पेशेंस एंड परसिवरेंस जो आपको रखनी पड़ेगी. The experience in movie जब तक है जान. Wonderful experience. I think experience of a lifetime, I would say. So welcome to another super special episode of VoiceOver per Charcha. In this episode, we have a senior seasoned voice actor, a voiceover artist, an actor, and the list is too big. As a voice actor, the official Hindi voice of Rick Harrison of popular series Pawn Stars on History TV 18 since 2011. For this, he was presented with a certificate of appreciation by History TV 18 for their extremely popular Hindi dub shows, that is Pawn Stars, and it's hugely popular even today and remains one of the longest running Hindi dub shows on History TV 18. And recently, it has just finished its 24th season. Apart from this, the Hindi voice of Vin Diesel in Hollywood theatre release movie Bloodshot, which was released in March 2020 and now it's available on Amazon Prime. The official voice of Hawkeye of the Disney's Avenger television series, and apart from that, the official Hindi voice of Kabao in anime Perman. Considering his voiceover journey, he recently voiced for several audio visuals for new Indian Parliament building in 3 different languages, Punjabi, Hindi and Urdu. He has voiced, dubbed for TVCs, brands in Punjabi, Hindi and English. For example, Tata Nexon featuring KL Rahul, Mountain Dew featuring Hrithik Roshan, Harpic featuring Akshay Kumar. In RBI, he voiced for Mr. Amitabh Bachchan, and as an actor, he played the role of an army officer along Shah Rukh Khan in Yash Raj film's Jab Tak Hai Jaan. In film Dil Kabaddi as Irfan Khan's friend, in film Tumse Achha Kaun Hai as Aarti Chabaria's friend on her debut movie, he played an undercover officer in director Anurag Basu's love story on Sony Sub. He acted as a parallel lead in Darna Mana Hai on Star One, acted in TV show MIIT on Z, directed by Anurag Basu, and further he modeled for music videos as a Sikh lead model and for several TV advertisements. And currently he's shooting for Sardar, the game changer, playing Maharaja Yadavendra Singh of Patiala. So overall, a seasoned voice actor, voiceover professional, a model and actor, and last but not the least, the current General Secretary of Association of Voice Artists, that is AVA. So to my viewers, to my listeners, to my subscribers, it's a great honor, it's a pride, it's a privilege to have Mr. Amrinder Singh Sodhi on VoiceOver पर चर्चा. So sir, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है VoiceOver पर चर्चा में. Thank you so much, Harsh, for having me on the show. Thank you. So, sir, while starting this episode, first of all, I would like to know about आपकी performing arts में शुरुआत कैसे हुई? Overall, अगर हम acting को consider करें या voice acting हो गया, modeling हो गया, acting हो गया, how it all started? Honestly, Harsh, मैं शुरू से ही बचपन से ही ड्राइंग में मेरा बहुत इंटरेस्ट था. मैं स्कूल टाइम में ना बहुत सारे पॉलिटिशियंस की एक्टर्स के ना स्केचेस बनाया करता था. एंड इन फैक्ट माय पेरेंट्स यूज्ड टू टेल मी कि व्हाई डोंट यू टेक इट अप एज अ प्रोफेशन इन द फ्यूचर बिकॉज़ योर हैंड इज वेरी गुड इन ड्राइंग. तो उस टाइम पे मुझे लगा नहीं कि बिकॉज़ आई एम अ लिबरल, लिबरल हैज एवरीथिंग टू डू विद आर्ट्स, स्पीच, सिंगिंग, एनी परफॉर्मिंग आर्ट्स, यू नेम इट, एंड द लिबरल्स आर जस्ट गुड एट इट. तो मुझे लगा नहीं यार, आई थिंक यही मेरा प्रोफेशन है, क्योंकि मेरे एस्पिरेशंस कुछ और थे ऑनेस्टली. देन इस तरह से सिंगिंग मेरी हॉबी थी. मैं स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मैं सिंगिंग करता रहा हूँ, बट मैंने ज़्यादा रियाज वगैरह नहीं किया. आई डिड नॉट परस्यू इट एज अ प्रोफेशन, बट आर्ट्स में शुरू से मेरी रुचि बहुत रही. तो लेकिन बिकमिंग एन एक्टर और अ वॉइस एक्टर was just not on my list. I would say destiny plays a very important role in everything you do in life.
वैसे मेरे साथ भी कुछ हुआ. I had come to Mumbai for an entirely different reason. That's when I was doing my fashion designing. I don't know if you know about it. I've also done my fashion designing Okay. course of mine, and I've topped in my batch. तो portfolio आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है. Okay. I'll tell you how it all happened. Because fashion designing का मेरा ये था कि मुझे इसको profession बनाना है. I have some of my relatives who is a very big designer in Delhi. So I wanted to pursue it as a profession, but then कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे I had to stay back in Mumbai. He wanted me to shift to Delhi. You know, उनका बेस वहीं पे था, तो he said I can really help you out. But then I had made up my mind by then कि नहीं, मुझे मुंबई में ही रहना, अब जो भी हुआ यही करना. So fashion design is somewhat of a back seat, but that's when modeling happened. I just met a friend of mine in a gathering. So he mentioned it to me कि एक म्यूजिक वीडियो बन रहा है. उस टाइम if you remember 90s में पॉप म्यूजिक जो बहुत ज्यादा Yes. popular, many singers were coming at that time, पंजाबी singers. So एक बहुत ही फुट टैपिंग नंबर था, जो एक बहुत ही renowned choreographer है लॉन्जी, जिन्होंने ऑस्कर भी जीता है स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए, वो उसको कोरियोग्राफ कर रहे हैं. And he said, why don't you just go and meet him, because he's looking for a Sikh character, Sikh male model for his music video. I said, यार, I have no clue about this thing. You're asking me to go and meet him. मुझे कुछ पता तो होना चाहिए. मुझे इस प्रोफेशन की बिल्कुल नॉलेज नहीं है. How do I just go and meet him like that? He said, no, I'll give you a reference. He's desperately looking for somebody. So I said, let me just give it a shot. मैं गया, मिला, and said, this is the song, and I just want you to freak out on that song. I am not giving you any steps as such, but just enjoy your dance. And he played the song. It was a good foot tapping number, and Punjabis, you know how it is. The moment Yes, of course. it's very difficult to hold ourselves back. कुछ ही beats चाहिए, तो Yeah, initiate. And then I just gave it my best shot, and he said, okay, I think I liked what I saw, and I'll let you know. बस ऐसे कुछ शुरुआत हुई, and then one thing just led to another, and मुझे पता भी नहीं चला कब मेरा ये full time profession बनना शुरू हो गया. मॉडलिंग में मैंने म्यूजिक वीडियोस किए, काफी सारे एडवर्टाइजमेंट्स किए, टीवी शोज किए. टीवी शो भी मेरे उसमें बिल्कुल नहीं था कि मुझे टीवी शोज करने हैं, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड आई ऑनेस्टली वाजंट रेडी फॉर इट एज एन एक्टर. मेरी कोई थिएटर बैकग्राउंड नहीं थी, कुछ भी ऐसा मेरी ट्रेनिंग नहीं थी, फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, कि जिसकी वजह से मुझे बैक टू बैक रोल्स मिलने शुरू हो जाते, यू नो. एंड आई हैडंट इवन मेड अप माय माइंड टिल दैट टाइम कि मुझे यही करना है, बिकॉज आई वाज इन मुंबई फॉर एन एंटायरली डिफरेंट रीजन, नॉट फॉर एक्टिंग. एंड वॉइस एक्टिंग तो मुझे पता भी नहीं था बैक देन कि देयर इज अ प्रोफेशन कॉल्ड वॉइस एक्टिंग. सो आई गेस I was destined to be here in these two professions. So modeling के बाद मुझे फिर serials का मुझे लगा when I felt that I'm comfortable in front of the camera, you know, I can perform. Then that's when I decided to, I think now let me try it more seriously. That's when I started meeting people. I started going for auditions. उस टाइम पे तो अप्रोच भी बड़ी डिफरेंट थी. आज तो इंटरनेट की वजह से काफी कुछ बहुत इजी हो चुका है, बट काफी कुछ चेंज हो गया. Very difficult. It was very difficult to come across people जो आपको, you know, will put you to the right people. But then I think that's how it all started. So as you rightly said कि अब तो जैसे आजकल तो ऑडिशंस भी ऑनलाइन होने लगे हैं. पहले तो एक ऑफलाइन, इसको हम टिपिकल वर्ड दे सकते हैं. राइट. सर, वॉइस एक्टिंग में कैसे, जैसे ऑफ कोर्स एज यू टोल्ड योर स्टोरी कि आप जैसे प्लान नहीं था, यू गॉट इनटू मॉडलिंग, धीरे धीरे करके आपको और भी रोल्स आने शुरू हुए, एक्टिंग पे जैसा आपने जिक्र किया. वॉइस एक्टिंग, वॉइस ओवर में कैसे शुरुआत हुई? मुझे अभी भी याद है, मैं ये सीरियल कर रहा था, लव स्टोरी नहीं, उसके पहले लीड सीरियल कर रहा था मैं जी पे. होता क्या है ना, किसी भी एक्टर के लिए मैं ये हमेशा ये कहता हूँ, जब भी एज ए फ्रीलांसर आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो साइड बाय साइड आप कुछ ऐसा जरूर कीजिए जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी बनी रहे. क्योंकि मुंबई जैसे शहर में अगर आपको सर्वाइव करना है, सो रेगुलर वर्क आपको चाहिए. एक्टिंग में क्या होता है, इट्स नॉट जस्ट विद मी और एनी अदर एक्टर, बट विद एवरी एक्टर. आप हो सकता है कि 6 महीने बहुत बिजी हो, 1 साल बहुत बिजी हो, एंड सडनली देयर इज अ लल. There's no work at all. We have seen so many actors, you know, who were doing so good for themselves 10 years ago, but then they are nowhere to be seen today. कितने ऐसे actors? This is something I realized long ago. जब मैंने start में ये शुरू किया था, मुझे पता था कि as a Sikh character also there will be limitation, because
आई हैड डिसाइडेड कि मुझे कोई भी कैरिकेचर शोज नहीं करने हैं, कुछ भी हैंकी पैंकी स्टफ नहीं करना है. इफ एट ऑल आई डू समथिंग इट हैज टू बी सब्सटैंशियल, अदरवाइज आई वोंट डू इट. हैविंग सेड दैट, आप साथ साथ कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिसकी वजह से आपकी सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क ना लगे. बिकॉज आई वाज न्यू इन मुंबई बैक देन. मुझे कोई ऐसा, मेरे कोई बिजनेस नहीं था कि जिसकी वजह से मैं अगर ये काम नहीं भी कर रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं से जो है मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज टेकन केयर ऑफ, ऐसा नहीं था. अगेन अ फ्रेंड ऑफ माइन केम टू माय रेस्क्यू. आई जस्ट हैपेंड टू आस्क, मैंने कहा यार मुझे कुछ वॉइस रिलेटेड कुछ करना है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव बीन टेलिंग मी दैट रविंदर यू हैव अ गुड वॉइस, व्हाई डोंट यू डू समथिंग अबाउट इट. And as I said back then, I didn't even know that there is a profession called voice acting. उतना उस समय अवेयरनेस भी नहीं थी, उतना पॉपुलर भी नहीं था. आज तो थैंक्स टू सोशल मीडिया हम लोग लोगों के सामने हैं, लोग हमसे बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं. उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था. सो लकीली मुझे मेरी मुलाकात हुई जे.आर. वर्मानी जी, गॉड ब्लेस हिज सोल, इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड. उनका एक इंस्टीट्यूट था वर्ड्स एंड वॉइसेस का, और जब मैंने उनके बारे में और पता किया तो मुझे पता चला कि बहुत सारी वॉइसेस उन्होंने इंडस्ट्री को दी हैं. ऑल द स्टॉलवर्ड्स, जब उन्होंने नाम मैंने सुने कि किन किन को उन्होंने ट्रेन किया है, किन किन को उन्होंने ब्रेक किया है, आई वाज रियली सरप्राइज्ड. मैंने कहा दिस मैन इज समथिंग, एंड ही वाज द विनर ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड. बिग अचीवमेंट, मतलब उस समय के लिए वेरी बिग नेम मिस्टर जे.आर. वर्मानी. मैं गया उनके पास, मिला. His first condition was कि Ravinder, I will see if you have it in you to become a voice actor. आपको ऑडिशन देना होगा मेरे पास, मैं आपको स्क्रिप्ट दूंगा, you have to perform. Let me see how you do it. So I was keeping my fingers crossed. मैंने दिया ऑडिशन and luckily it went through. उन्होंने कहा कि yes, तैयारी करनी होगी थोड़ी सी, और बहुत सारी टेक्निकलिटीज भी हैं जिनके बारे में मुझे बताना पड़ेगा आपको. If you are ready, then I'll teach you. I said, I'm ever ready, please. That's when I enrolled myself for a voice acting course. 6 months का कोर्स था, बट वो 6 months सिर्फ कहने के लिए थे. हमने बहुत सारा समय बिताया एक साथ. आज सर नहीं है, लेकिन I have no qualms in admitting the fact that today whatever I am in voicing, it's all because of it. All because of it. I'm very, very grateful to J.R. Vermani ji for taking me on board for this thing, and then guiding me through this entire process of voice acting. So for those 6 months, specifically voice acting and voiceovers, आपने उन चीज़ों को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया, उसको आपने अपने ऊपर जो है in terms of this added to your craft, जो आपको ऑलरेडी, और कहीं ना कहीं एक्टिंग, वॉइस एक्टिंग कहीं ना कहीं आपको एक इंटररिलेटेड. यस. तो सर अगर हम एक्टिंग पे अगर हम आते हैं, सबसे पहली बात, आई हैव अ फुल लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स जिसके बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगा. सबसे पहले जैसा मैंने जिक्र भी किया था एट द बिगिनिंग ऑफ दिस पॉडकास्ट, सबसे पहले सर हम आई वुड लाइक टू नो द स्टोरी ऑफ द कैरेक्टर रिक हैरिसन, हाउ इट केम टू यू, और कैसे ये शुरुआत हुई, और अभी तक इसको इतना आपको इनफैक्ट सोशल मीडिया पे भी जब लोग जुड़ते होंगे, मिलते होंगे, अपार्ट फ्रॉम द पीपल हु आर नॉट लिविंग इन मुंबई, कंसीडरिंग द होल जियोग्राफी, डिजिटल इकोसिस्टम, आज भी आपको सर उस बारे में लोग याद करते हैं इस कैरेक्टर के लिए. सो हाउ इट ऑल स्टार्टेड? Again, I would say that I was destined to do Rick Harrison because बहुत सारे ऑडिशंस हो रहे थे उस वक्त इस कैरेक्टर के लिए. I don't know if you know about Anju Jamal and Pinky Rajput ji of Mayuki Enterprises. Yes. मैं ऑलरेडी उनके साथ कुछ 1-2 एनिमेशन सीरीज कर रहा था, एंड हिस्ट्री टीवी 18 तक लॉन्च ही हुआ था कुछ समय पहले. एंड अंजू जमाल, who's again no more with us, God bless her soul, she called me and she said, Ravinder, I have something for you, and मुझे और शायद किसी को और ऑडिशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. This character is meant for you. You come and audition for it for the formality. I just want to send it to the channel. But मुझे पूरा विश्वास है कि ये आप ही का कैरेक्टर. मैंने ऑडिशन किया and things just fell in place. चैनल को बहुत पसंद आया, तब से हमारी शुरुआत हुई. And within a couple of years, I won't say couple of years, maybe a year and a half, वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया रिक हैरिसन का कैरेक्टर. Everybody started relating to it. अगर आपने वो शो देखा होगा, उसका फॉर्मेट जो है वो बहुत ही नेचुरल है. It's not like जैसे आप डब प्रोग्राम्स देखते हैं वैसा नहीं. It is like one-to-one conversation, like we are talking to each other right now.
तो उसको मैंने कुछ और अपनी चीजें ऐड करके कुछ ऐसे नुआंसेस उस कैरेक्टर के साथ हिंदी ऑडियंस की सेंसिबिलिटीज के हिसाब से मैंने उसमें कुछ चीजें एडिशन करके जो है मैंने उसको परफॉर्म करना शुरू किया एंड आई थिंक दैट रियली क्लिक्ड। मैं एक बात आपको बोलता हूँ, कभी भी जब आप कोई डब्ड कंटेंट देखते हैं, हम अक्सर इंग्लिश से हिंदी डब करते हैं, करेक्ट है, या फिर कोई भी और भाषा में, इट कुड बी टर्किश, कुड बी स्पेनिश, लेकिन आप ये देखिए ऑडियंस आपसे कब रिलेट करती है, जब आप उसको हिंदी सेंसिबिलिटीज, हिंदी ऑडियंस की सेंसिबिलिटीज के हिसाब से डब करते हैं। आपकी जो टेक्नोलॉजी है, आपकी जो स्क्रिप्ट है, आपकी जो शब्दावली जिसको आप यूज करते हैं, वो जितनी ज्यादा आप हिंदी ऑडियंस की सेंसिबिलिटीज के हिसाब से रखेंगे ना, लोग उसको पसंद करते हैं। मेक इट साउंड एज इफ इट्स अ कॉन्वर्सेशन, ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा सीरियस कैरेक्टर नहीं था, इट्स अ फन कैरेक्टर। उसकी शॉप है जहाँ पे बहुत सारे लोग उसके पास स्टफ लेके आते हैं कि यू नो आई हैव समथिंग टू सेल इट, आई हैव समथिंग टू मॉर्टगेज। मुझे वहाँ पे, अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में अगर आप देखेंगे, लोगों के पास एक छोटी सी ऐसी चीज है जिसके उनको लाखों डॉलर्स मिल जाते हैं। म्यूजियम की जो उनका जो हेरिटेज है वो बहुत ही रिच है। उनकी कुछ ऐसी कई बार मैंने ऐसी केसेस में देखा कि एक कॉइन है जो बहुत ही वैल्यूएबल कॉइन है, लेकिन उस इंसान को भी नहीं पता था कि वो उस कॉइन के लिए इतने ज्यादा पैसे या डॉलर्स उसको मिल जाएंगे, और उसको जो लगा था कि शायद ये 2 या 500 400 डॉलर की चीज है, उसके लिए वो 50,000 या 1 लाख डॉलर्स तक उसने वो लेकर जाता है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट, और उसको कॉन्वर्सेशन, मेरी सारी टीम, मैं कहूंगा मेरे जितने बाकी भी कैरेक्टर्स जो उसमें डब करते हैं, वी ऑल सॉर्ट इट दैट वी कीप इट वेरी वेरी नेचुरल, it should not sound like a dubbed content, and I think that's what really clicked. And then one season after another, people started liking it. उस टाइम मैं 2 shows कर रहा था, in fact, Pawn Stars and Ice Road Truckers and Deadliest Roads. उसमें मैं डेव रेडमैन को डब कर रहा था। ये दोनों ही shows बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, but Rick Harrison of Pawn Stars was on another level. I mean, when we met the channel people, they came and they said, never before we have seen this kind of an hysteria, जहाँ पे एक dubbed content show के कैरेक्टर को इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है। आज भी हिस्ट्री टीवी 18 पे it's one of the most popular programs. So I'm very glad, I'm very grateful to Mayuki Enterprises for offering me this character of Rick Harrison. Of course, 24 सीजन बहुत बड़ी बात है, 24 सीजन, और उसके साथ आपको may I know the year आपको you got received a certificate of appreciation from the channel, उसको आपसे उस चीज से आपको नवाजा गया था, वो कौन सा साल था? मैं if I can 2012 की बात है ये, हमने ऐसा कि 1-1.5 साल में ही इतना ज्यादा वो पॉपुलर हो गया था that it was very kind of the channel History TV 18 also कि उन्होंने आर्टिस्ट को जो है रिकग्निशन देना जरूरी समझा, जो इसके पहले तक ऐसी कोई हमने नहीं देखा था कि चैनल्स ने आपको अप्रिशिएट किया हो या आपको आके जो है सम्मानित किया हो कि आपका काम बहुत सराहा जा रहा है। हो सकता है वो मेल्स भेजते होंगे प्रोड्यूसर्स को या वेंडर्स को, बट डायरेक्टली टू द आर्टिस्ट इट वाज प्रोबब्ली द फर्स्ट टाइम। इट्स अ बिग थिंग, या क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, उनका तो कंटेंट है, उनका ठीक है इन टर्म्स ऑफ लोकलाइजेशन, ट्रांसलेशन, उसके बाद उनको उस ऑडियंस को रीच करना है एज पर डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑल। अगर वो किसी को रीच आउट करते हैं आर्टिस्ट को, वो रोल इतना ज्यादा आपने मतलब होता है ना, एक रोल में जान डाल दी उस हिसाब से इन टर्म्स ऑफ द हिंदी कैरेक्टर ऑफ दैट, हिंदी पोर्ट्रेयल ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। बिल्कुल, मेरा यही मानना है कि आपके करियर में ना कोई एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसको जब आप अपने करियर से एक वो संन्यास ले चुके होते हैं या आप करियर छोड़ चुके हैं, तब भी वो लोग आपको उस कैरेक्टर के लिए याद करते हैं। सो फॉर मी इट इज रिक हैरिसन's कैरेक्टर। एंड ऑफ कोर्स सम मोर कैरेक्टर्स इन द लिस्ट, जैसे मैंने तो हमेशा अभी जिक्र भी किया था, एक लंबी लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है जो मैं जानना ही चाहूंगा। सो व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर रोल, हॉकाई, सॉरी, अगेन इट इज वन ऑफ, आपने एवेंजर्स सीरीज तो सुनी होगी, इसकी बहुत सारी सीरीज है, एवेंजर असेंबल है, एवेंजर्स अर्थ है, एंड 3-4 इसके अलग अलग सीरीज बने थे, एंड शुरू से ही आई वाज द ऑफिशियल वॉइस फॉर हॉकाई। ये अगेन एनिमेशन है, एनिमे है जो बहुत सारी कंट्रीज में चलता है, एंड इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम ऑफ डिज्नी, एंड आई वाज वेरी लकी टू गेट द रोल ऑफ हॉकाई। हॉकाई का कैरेक्टर अगेन एक, जैसे एवेंजर्स में आपने सारे सुपर हीरोज हैं, Yes. And he's very good with his arrows and bow. तो उसका निशाना जो है वो बहुत ही अचूक है, and he's very witty. वो अपने एक पूरे सारे कैरेक्टर्स में बहुत सीरियस होते हैं। हॉकाई का जो कैरेक्टर होता है वो एवेंजर्स में बहुत ही विटी है, और इसका ब्लैक विडो के साथ अक्सर जो है इसकी नोक झोंक चलती रहती है।
So this was again one of the fun characters that I've been able to do it in my voicing career. Yes, and recollecting, glad that Avengers I can have few casts on my show. मैं just recollect कर रहा था, आपने ब्लैक विडो का नाम लिया, Yeah, वो भी उनका भी that's played by Nishma ma'am if I'm not wrong. correct. Yes, yes. तो सर उसके अलावा I would further like to know about the Kabao character जो आपने किया था, उसके Yeah. बारे में. कबाओ का भी मुझे बड़ी खुशी होती है हर जब आज जो बच्चे कबाओ के साथ जुड़े हुए हैं, या कॉमन सीरीज जिसमें कबाओ का ये कैरेक्टर था, वन ऑफ द प्राइमरी कैरेक्टर्स ऑफ द सीरीज कॉल्ड बर्मैन। मतलब जब आज मुझे उनके मैसेजेस आते हैं, एज आई सेड, कि सोशल मीडिया की वजह से आज हमारे फैंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है कि हम ये कैरेक्टर को आवाज दिया करते थे। टुडे आई रियलाइज हाउ पॉपुलर दिस कैरेक्टर ऑफ कबाओ इज। मेरे ये करियर की स्टार्ट की सीरीज है, वन ऑफ द सीरीज जो मैंने आई स्टार्टेड माय करियर विद अ लॉट ऑफ एनिमेशन स्टार। ये बहुत पॉपुलर था उस वक्त भी, लेकिन मुझे इसकी पॉपुलैरिटी का बिल्कुल अंदाजा नहीं। ये परमैन सीरीज के 4-5 कैरेक्टर, इसमें अगेन प्रसाद बर्वे यूज्ड टू बी परमैन, मेघना एरंडे यूज्ड टू वन ऑफ द कैरेक्टर्स, नेश्मा वाज अगेन, शी वाज आल्सो देयर, मी, ललिता कुमार। सो ये 5-6 कैरेक्टर्स बहुत पॉपुलर। आज जब मुझे एक कम्युनिटी है, इनकी एनिमे की कम्युनिटी है, बच्चों की जिन्होंने पढ़ाई की है, दे हैव अ ह्यूज बेस ऑफ अबाउट 5000 मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी जो जुड़े हुए हैं मुझसे और रेगुलरली मुझसे बातचीत करते हैं। और उनका सबसे पहला एक ही सवाल होता है, सर परमैन कब लौट रहा है, परमैन कब लौट रहा है, वी वांट टू सी दैट सीरीज वन मोर टाइम। इट्स अ जापानीज सीरीज अगेन। तो हमें निराशा के साथ जवाब देना पड़ता है कि अभी हमारे पास ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है। सो यू सी द लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी कि इतने साल हो चुके हैं फिर भी लोग उसे आज भी बच्चे याद रखते हैं, उनका चाइल्डहुड उनके साथ जुड़ा हुआ है, कितनी सारी मेमोरीज उनकी जुड़ी हुई है। वो कहते हैं कि हम स्कूल से आते थे, हम बैक पटक के सबसे पहले वही देखते। फिर आपको अच्छा लगता है कि आप किसी की चाइल्डहुड मेमोरीज के साथ जुड़े हुए हैं। उस टाइम हमें नहीं पता था हम क्या कर रहे हैं, बट आज उसकी वैल्यू हमें समझ में आती है, थैंक्स टू सोशल मीडिया अगेन। यस सर, ऑफ कोर्स थैंक्स टू सोशल मीडिया। अब कह सकते हैं कि जैसे ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, जैसे इन टर्म्स ऑफ डबिंग में जैसे बता रहा हूँ कि जब आप किसी रोल को डब कर रहे हैं तो वहां पे बिफोर द मूवी रिलीजेस शायद एक बाउंडेशन होती है कि आप उसको रिवील नहीं कर सकते, बट उसके बाद जब आप रिवील करते हो लोगों को पता लगता है, तो लोग उसके लिए भी तो फिर रीच आउट करते हैं, लोग जानने की और कोशिश करते हैं, स्पेशली एनिमे फैंस हो गई, वेब सीरीज हो गई, कितनी सारी ऐसी चीजें हैं। अब देखिए ना, हम लोग हमेशा बिहाइंड द सीन्स वाले लोग रहे। आप अगर हमें वेस्ट से कंपेयर करें तो वेस्ट में लोग वॉइसिंग के जो कैरेक्टर्स हैं, जो वॉइस ओवर्स करते हैं या फिर हॉलीवुड फिल्म्स में डब करते हैं, अपनी आवाज जिनको देते हैं, ये ह्यूजली पॉपुलर। उनके नाम से, उनके कैरेक्टर के नाम से, आप सिम्पसन सीरीज अगर आपको याद हो, इट रैन फॉर मोर देन 33 इयर्स। तो लोग उनको इस हद तक जो है प्यार देते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं शायद हमारा प्रोफेशन जो बहुत ही अंडररेटेड रहा, हमें उतनी तवज्जो नहीं मिली, हम हमेशा बिहाइंड द सीन्स रहे हैं। आज हमें वो मौका मिला है, we go all out to tell people, okay, this is the character that I did a few years ago. आज जब भी कुछ नई रिलीज होती है, we want to get connected to our fans. एक कलाकार को क्या चाहिए होगा? देखिए, काम की अप्रिसिएशन एक अलग बात है, लेकिन आज मेरे ख्याल से किसी भी प्रोफेशन की बात करें, हर इंडिविजुअल यही चाहता है कि उसको उसके काम के लिए जाना जाए, किस तरह का काम वो कर रहा है। अगर कोई फिल्म रिलीज हो रही है, उसमें जो अगर कोई एक्टर काम कर रहा है, तो अपनी पब्लिसिटी के लिए ही हायर्स अ पीआर। हम लोग भी तो काम यही कर रहे हैं ना, हम भी तो एंटरटेन ही कर रहे हैं लोगों, डे इन डे आउट हम लोग वी आर ट्राइंग टू एंटरटेन मिलियंस ऑफ व्यूअर्स। लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत अंडररेटेड है, आज भी अंडररेटेड। इसलिए वी आर मेकिंग एन एफर्ट टू रीच आउट टू पीपल, वो हमसे कनेक्ट हो, हम अपने काम की फीडबैक लें उनसे कि उन्हें क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा, या एक फलाना कैरेक्टर जो मैंने डब किया था, आपकी उसके बारे में क्या राय है। जब भी हम अपना कोई काम जो है सोशल मीडिया पर डालते हैं तो ऑब्वियसली कमेंट्स आते हैं, हमें पता चलता है। कुछ फैंस ऐसे क्लोज भी हो जाते हैं जिनके साथ हम वन ऑन वन भी बात करते हैं, दे गिव यू द फीडबैक ऑफ योर वर्क। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये करना पड़ेगा, बिकॉज सच इज द नेचर ऑफ योर प्रोफेशन। आप जब तक लोगों से जानेंगे नहीं आपका काम कैसा होने लग रहा है, तो आप कैसे इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे अपने काम को। हर कैरेक्टर, हर किरदार अलग है। पहले जो आपने 10 साल पहले किया था वो अप्रोच अलग थी, वहाँ मीडियम अलग था, आपकी टेक्नोलॉजी अलग थी। आज हम बिल्कुल एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं।
ह्यूज डिफरेंस। द काइंड ऑफ स्टूडियोज जिसमें हम आज जाते हैं, जो हम पहले जाते थे, उसमें बहुत फर्क आ चुका है। The influx of OTT has made a huge difference. Certainly. आप जानते हो नेटफ्लिक्स, Amazon, MX Play, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, आज वॉइस एक्टर्स के लिए बहुत बड़ा जो है एक मीडियम की कोई कमी नहीं रहेगी। बट यस, एक और थ्रेड भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। Yeah. So anyway, sir, before that, हमने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स की, सो पॉपुलर कैरेक्टर्स जिसके बारे में हमने बात की अभी। One more thing I would like to know your experience of voicing Vin Diesel. Yeah. वो उसका थोड़ा और इसके बारे में थोड़ा जिक्र कर सकते हैं। And again, it just fell in my lap. I don't know if you're aware, Vin Diesel के लिए 4-5 लोगों ने वॉइस दी हुई ऑलरेडी। Yes. अलग अलग नामी जो रिनाउंड वॉइस आर्टिस्ट हैं, उन्होंने विन डीजल को अपनी आवाज दी है। तो जब ब्लडशॉट के लिए ऑडिशंस हो रहे थे, तो उनको भी डिफरेंट वॉइस चाहिए थी। मुझे ऐसे बताया गया कि अभी तक वो टेक्सचर शायद वो जो ढूंढ रहे हैं सोनी पिक्चर्स वाले जो थे, उनको नहीं मिल रहा। तो दैट्स व्हेन आई वाज कॉल्ड बाय अ प्राइम फोकस पीपल। They got in touch with me and they said, would like to audition for Vin Diesel's voice. I said, okay. I went there, I auditioned and luckily got a book. And Vin Diesel का आपको पता है और क्या है उसका, तो एक Yes. how he carries himself as an actor. So to match up to that, उस level को करना, it required a lot of effort, of course. And उसके जो fight scenes होते हैं, it can be very very taxing, क्योंकि उसके जो breaths हैं, उसके जो reactions होते हैं, वो सारे आपको match करने होते हैं। So it was once again a very very challenging, at the same time fun experience to dub Vin Diesel. But a different level of versatility। अब जैसे आपने विन डीजल का हमने जिक्र किया, आपने साउथ इंडियन एक्टर्स में स्पेसिफिकली अगर जिक्र करता हूँ, जूनियर एनटीआर को आपने डब किया था। हाल ही में जो एक वेब सीरीज या जो इनका इस तरह से फीचर हुआ था, स्ट्रीम हुआ था, हाउ डू स्विच बिटवीन कैरेक्टर्स? मतलब आपको ये एक चैलेंज होता है, बट ये एक यूएसपी होती है वॉइस एक्टर की, इतने सारे कैरेक्टर्स, अलग अलग सिचुएशन होती है। सो एनी पर्टिकुलर सजेशन, टिप्स फॉर द बिगिनर्स जो इसमें करियर अपना बनाना चाहते हैं? Absolutely. सबसे पहले क्या है, आप you should be sure about yourself that you want to pursue voicing as a profession. मैं अभी भी कहता हूँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा सिर्फ लगता है कि माइक के आगे जाके बोलना है, ऐसा नहीं है। It's a very very serious profession. You have no idea कि आप इतना कितना डिमांडिंग प्रोफेशन है, और इसके अलग अलग मीडियम्स जो हैं, उसके साथ जुड़े लोगों की डिमांड्स बहुत अलग है। सबसे पहले आप अपनी भाषा पे काम करो, जिस भी भाषा में आप काम करना चाहते हैं, दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। आपको अपनी लैंग्वेज पे कमांड लाना बहुत जरूरी है। उसके बाद सारी चीजें आती हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि इन योर ग्रोइंग अप ईयर्स, या जैसे जैसे आप काम देखते हैं वॉइस एक्टर्स का, और आप देखा है आपने कि भैया मुझे भी एक्टर बनना, वॉइस एक्टर बनना है, लेकिन उस हाथ के साथ बहुत सारी दूसरी चीजें जो आप नहीं देख पाते, उस वॉइस एक्टर की जर्नी नहीं देख पाते, या उसकी स्ट्रगल नहीं देख पाते। How many rejections or failures he or she must have experienced throughout the journey, वो आप नहीं देख पाते। तो कहीं ना कहीं आपको जो हर प्रोफेशन की डिमांड होती है, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, टन्स ऑफ पेशेंस एंड परसिवरेंस, जो आपको रखनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम हो सकता है आप किसी वॉइस एक्टर से इंस्पायर्ड होते हैं, बिकॉज यू बीन सीइंग अ लॉट ऑफ वर्क ऑफ दैट पर्टिकुलर वॉइस एक्टर। कहीं ना कहीं आप वो स्टाइल डेवलप करने लग जाते हैं। ये मैं हमेशा बोलता हूँ वॉइस एक्टर्स को। उसमें होता क्या है कि आप अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी जो है वो खोने लगते हैं। सी, आपका एक डबिंग का पर्टिकुलर स्टाइल हो सकता है, यूनिक स्टाइल हो सकता है, लेकिन आपने उस एक्टर को इतना ज्यादा देखा है, या अभी भी आप उसको इतना फॉलो कर रहे हैं कि ना चाहते हुए भी आप उसके स्टाइल को कॉपी करने लग जाते हैं। लाइक आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ शाहरुख खान सर। He has been a role model for many. We all know that. And the way he does romance on screen, nobody else has been able to do it till date. So उसको उन्हें लेकर बहुत सारे लोग इतने ज्यादा इंस्पायर्ड है। मैं टेलीविजन पे भी अक्सर हमारी बातें होती है एंटरटेनमेंट फील्ड में, कि बहुत सारे लोगों में ना उनकी एक्टिंग की झलक आती है, वो अपना स्टाइल क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस भी मीडिया में काम करना चाहते हैं, बी इट वॉइस ओवर्स, dubbing feature films, dubbing OTT series, audio books, animation, podcast, कुछ भी आप कर रहे हैं, अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी जरूर रखिए।
एंड एज यू राइटली मेंशन कि स्विच ओवर जो है वो बहुत जरूरी है. लाइक वो जरूरी है. वो एज अ वर्सेटाइल वॉइस एक्टर, फिर आपको अपने अंदर वो सारी चीजें लानी पड़ेंगी. यू हैव टू ग्रो एज अ वॉइस एक्टर. डबिंग की रिक्वायरमेंट अगर अलग, आपको वहां पे सिंक पैरामीटर देखना होता है, आपकी लैंग्वेज पे कमांड बहुत जरूरी है. यू हैव टू लिव द सेम अमाउंट ऑफ इमोशंस दैट एन एक्टर हैज गॉन थ्रू व्हाइल शूटिंग दैट सीन. आपको 30-40 मीटर के रूम में, डबिंग रूम में वो सारी चीज क्रिएट करनी पड़ेगी. आपके सामने ना तो सेट है, ना को एक्टर्स हैं जो आपको रिएक्शन देंगे या क्यूज देंगे. यू हैव टू क्रिएट इट ऑन योर ओन. ये डबिंग सेक्टर है. वॉइस ओवर में लेट मी टेल यू, अ 30 सेकंड और अ 20 सेकंड ऑफ अ टीवीसी can be so demanding you can't even imagine. There will be 5 people sitting in the studio guiding you through. इसको सर, इसको एक लाइन को ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं. There is lot at stake. आप जो टीवी सीरीज देखते हैं 30 सेकंड की, उसकी मेकिंग पे लाखों या करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे. So you will have to do that job, do justice to that particular brand, right? That is why they take a lot of samples nowadays. First, पहले तो क्या होता था कि चलो वो लोग जानते हैं आपको या किसी कोऑर्डिनेटर के थ्रू आपका कास्टिंग कर लेते थे. Now for a small character of also clients want samples, voice sample. पहले भेजिए, हम देखेंगे क्या ये टेक्सचर हमारे ब्रांड को सूट करता है, क्या ये इमोशनल क्वोशंट उसमें है या नहीं है, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. तो मल्टीपल सैंपल्स वी हैव टू कीप ऑन शेयरिंग विद दीज क्लाइंट्स. ऐसा नहीं कि हमने 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं तो भैया हमें तो ऐसे ही मिल जाता है काम. It's a myth. You are as good as your last job. Let me tell you that. जो आपने 1 महीना या 10 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले कैरेक्टर किया था या वॉइस ओवर किया था, वो अगले उससे बहुत अलग है. भूल जाइए आप उसको. This client will have a different requirement altogether. आपको अडेप्ट करना आना चाहिए. This is one quality that a voice actor or an actor must. क्योंकि हर सिचुएशन, हर वॉइस ओवर, हर कैरेक्टर अलग होने जा रहा है. तो आपको उस हिसाब से अडेप्ट करना आना चाहिए. सब लोग नहीं सब चीज कर पाते, बट देन आई वुड से जितना खुद ये डेवलपमेंट्स करेंगे अपने अंदर, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचान के जो उन पर वर्क करना शुरू करेंगे. लाइक सम पीपल आर वेरी गुड इन मिमिक्री. कुछ लोग हैं बड़ी आसानी से जो कई लोगों की आवाजें निकाल लेते हैं, अलग अलग किरदार कर लेते हैं. बट एट द सेम टाइम द अदर पर्सन मे नॉट बी गुड एट दैट. वो सिर्फ वॉइस ओवर्स में अच्छा है, या सिर्फ नरेशंस में अच्छा है, या सिर्फ ऑडियो में अच्छा है. ठीक है ना? बट मोर द वर्सेटिलिटी, आप उसमें बेनिफिट करेंगे क्योंकि अलग अलग स्किल्स में आप सबको देख सकते हैं. उतनी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, बट अपना जो मेन जो किरदार है वो पहचानना बहुत जरूरी है कि आपके क्या मेन यूएसपीज है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मतलब जहाँ पे क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट और आप उस पे खरे उतरते हो अपने यूएस क्राफ्ट के हिसाब से. और सर एक और चीज, यू आर बीइंग पेड टू परफॉर्म, राइट? सो अनलेस यू परफॉर्म you will not be able to survive. So आपको अपनी परफॉर्मेंस का स्तर जो है ना वो पहले से ऊपर करके लेके जाना पड़ेगा. अगर आप यहाँ हैं तो 2 साल 3 साल बाद अगर आज मैं कहूँ कि जिस तरह से मैं साउंड करता हूँ, दिस इज द वे आई यूज्ड टू साउंड 10 years ago, नो, आई हैव आल्सो ग्रोन. कोई भी वॉइस एक्टर मेरी तरह वो अपने आप पे काम करता आ रहा है और हर जॉब के साथ हम सीखते हैं. देयर इज नो एंड टू लर्निंग. इट्स अ प्रोसेस. टिल द एंड ऑफ योर लास्ट ब्रेथ आल्सो यू कीप ऑन लर्निंग. You keep on adding something to your performance. Definitely. That's why I say that observe करना कितना जरूरी है. When you observe, you learn and you incorporate those nuances in your performances somewhere. And that too sir in the era of like 2024. हम इस टॉपिक पे आने रहे, बट एक छोटी सी झलक कि of course you're not just competing with humans. आप जो होता है कि अब तो सामने वाले के पास बहुत चॉइस है, मतलब उस पे हम एक बार of course इस टॉपिक पे हम आने वाले हैं. सर एनीवेज, एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट हमने अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की. एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट सबसे पहले सर मैं आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू. आपने अभी जैसा बताया कि द लॉन्च ऑफ न्यू पार्लियामेंट, जो जिस तरह से उसका उद्घाटन हुआ था कुछ समय पहले, एंड यू गॉट द चांस टू डू वॉइस ओवर इन हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, आई गेस तीनों भाषाओं में आपने किया. उर्दू आई वुड लाइक टू रिपीट, हिंदी, उर्दू एंड पंजाबी. And Punjabi. Okay. So, sir, if you could share the details about it, how you got like into it, and किस तरह से आपको ये opportunity मिली, ये जरूर मैं जानना चाहूँगा. Again, I think I was very lucky to come across this particular client. उनकी requirement थी कि जो narrative है वो बहुत powerful होना चाहिए, because ये जो parliament में अभी जो नया parliament इंडिया का बना है, yes, was going to be an historic moment. क्योंकि जो ट्रांसफर ऑफ पावर है जो बहुत साल पहले हुआ था,
एक बार फिर होने जा रहा था। तो उसमें वो पूरी चीज शिफ्ट होने वाली थी न्यू पार्लियामेंट में। अब अगर आप पार्लियामेंट कभी भी आपको जाने का मौका मिलेगा तो दिस इज गोना बी देयर फॉर इयर्स एंड इयर्स, एंड दिस इज व्हाई आई फील कि आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव बीन एबल टू डू दिस प्रोजेक्ट। इसमें इंडिया की पूरे हेरिटेज को, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे जो लॉज रहे हैं उन सबको उन्होंने ऑडियो विजुअल्स एंड ओनली ऑडियोज के थ्रू जो है पब्लिक को बताने की कोशिश की। आप एक अंदर टूर ले सकते हैं पूरा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। आप जब भी जाएंगे अंदर आपको वहाँ ऑडियो विजुअल्स देखने को मिलेंगे जिन पे आज आप हमारी आवाज सुन पाएंगे, क्योंकि आपको अगर जाने का मौका मिलता है। Wonderful. तो ये जब मैंने ऑडिशन किया था, मैंने पंजाबी के लिए पहले किया था। Then they said कि the sound suits for Hindi also. That's when I did Hindi also. और उसके बाद उनका था कि उर्दू की भी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी काफी सारे ऑडिशंस हुए। And they felt that the same voice has been able to do Punjabi and Hindi. So I think we can do it Urdu also. उर्दू के nuances बहुत अलग होते हैं, हमें सबको पता है। And it was a very very long project. बहुत सारे इसमें ऑडियो विजुअल्स थे, बहुत सारे ऑडियोज थे जो आपको तीनों लैंग्वेजेस में रिकॉर्ड करने थे। वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि पंजाबी और हिंदी तो कहीं ना कहीं हम बहुत इजीली मैनेज कर लेते हैं, बट उर्दू इससे पहले मैं जो करता आ रहा हूँ, उर्दू के टीवी कमर्शियल वगैरह मैंने किए हैं जो मैक्सिमम 30 सेकंड या 1 मिनट के होते हैं। इसमें आपको 5 से 6 मिनट के ऑडियो विजुअल्स थे जो वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड मैचिंग विद द सिंग, मैचिंग विद द विजुअल्स, प्लेन नरेशन, नो लिप सिंग एज सच, बट देन विजुअली आपको मैच करना है। यहाँ पे स्कोप ऑफ फंबलिंग, स्कोप ऑफ not getting the pronunciation right of certain words in Urdu, वो नहीं था। तो आपको बहुत प्रिपेयर, और इतना कोई आपको टाइम भी नहीं दिया जा रहा था कि आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। It was like on the go. So I was very very fortunate, और ये हिस्टोरिकल मोमेंट मेरे लिए भी ऑफ कोर्स हो जाता है किसी भी वॉइस एक्टर की। आप बहुत बड़ी बात है, मेरे लेवल पे जो है कल को कोई भी पार्लियामेंट का टूर लेगा तो उसको वहाँ पे हमारी आवाज सुने, आपकी आवाज सुनाई देगी। बहुत ही बड़ी चीज है, बड़ी बात है सर। और सर बिफोर और भी कई मुझे टॉपिक्स पे बात कर दी है, बट मैं वॉइसिंग पे स्पेसिफिकली, आपने जैसे कई सेलिब्रिटीज को डब किया है, उनकी जो जैसे कोई हिंदी या पंजाबी वर्जन हो गया, जैसे अमिताभ बच्चन जी हो गए, और भी ऐसे कई एक्टर्स हैं। मुझे काफी बार एक बार सवाल आते हैं कि अगर इफ यू वांट टू गेट इनटू डबिंग, तो जाहिर सी बात है कि आजकल बिकॉज ऑफ सो मेनी प्लेटफॉर्म्स डिजिटली अलग अलग भाषाओं में चीजें डब होती है, OTTs का आना और YouTube चैनल्स, तो उसमें एक मिथ है कि अगर आप किसी सेलिब्रिटी को डब कर रहे हो उसका मतलब है यू नीड टू साउंड एग्जैक्टली लाइक हिम। इज इट द केस, या फिर थोड़ा बहुत मिलता जुलता थोड़ा बहुत टेक्सचर होना चाहिए आपके हिसाब से? See, it varies. कुछ केसेस में अब जैसे कुछ सेलिब्रिटीज हैं, जैसे मिस्टर बच्चन है, मिस्टर शाहरुख खान, ऐसे कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपनी वॉइसेस को पैटर्न करा रखा है कि मेरी वॉइस सिर्फ ये वॉइस एक्टर ही करे। क्योंकि आपने देखा होगा कि मिस्टर बच्चन के इतने ज्यादा लोग मिमिक्री करते हैं, दे वर एक्चुअली मेकिंग अ लिविंग आउट ऑफ, लेट्स एक्सेप्ट इट। कितने सारे ऐसे लोग। तो अब जब आप एक लेवल पर एज अ सेलिब्रिटी, आपका एक लेवल है, आपका एक स्टैचर है, तो वहां पे आप ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी इंसान आपकी मिमिक्री करे, आपके जो एक ट्रेडमार्क आपका स्टाइल है उसको कॉपी करे और उसकी धज्जियां उड़ाए। लेट मी से दैट ऐसा हुआ था, ऐसा हो रहा था। दैट्स व्हेन सम क्लाइंट्स दे वर इंसिस्टिंग कि नहीं, आप पहले काम कीजिए, मिस्टर बच्चन के या जो भी एक्टर है उनके पहले ऑडिशंस करवाइए, देन इट वुड गेट अप्रूव फ्रॉम द एक्टर्स साइड। उनकी जो टीम है वो देखेगी, एक्टर से अप्रूव करवाएगी, उसके बाद ही वो आपको वो डब करने दिया जाए। एट द सेम टाइम कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं कि द वॉइस शुड सूट द फेस ऑफ द एक्टर। जरूरी नहीं है कि आप उसके सारे नुआंसेस को मैच करें या उसकी वॉइस को प्रॉपर्ली मैच करें, तो वहां पर वो लिबर्टी ले लेते हैं। बट यस, इन सम केसेस दे आर वेरी, इनफैक्ट यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड आल्सो। अगर आपने परमिशन नहीं दी है एक्टर की और उसे आपने डब कर दिया है, देयर कुड बी कॉन्सिक्वेंसेस। आप यू हैव टू मेक श्योर यू शुड ऑलवेज चेक विद द क्लाइंट जो भी आपको ये जॉब करवाने के लिए बुलाता है कि मुझे इस एक्टर की डबिंग करवानी है। You should make sure you ask them, sir, have you taken permission from the client, from the actor? Because ऐसा पास में हो चुका है जहाँ पे उन्होंने objection दिया है, and I don't want to be in any sort of trouble as an actor, voice actor.
तो वो आपको बताते हैं कि सर वी ऑलरेडी हैव टेकन परमिशन फ्रॉम द एक्टर, सो देयर इज नो वन। बट यस, आप देखेंगे कई एड्स में मिस्टर बच्चन की भी चल रही हैं जो एड्स टीवी पे आरबीआई का वो ब्रांड करते हैं, जिसके लिए मैंने भी उनको डब किया है। वहां पे हमारे ऑडिशंस हुए थे, कल्याण ज्वेलर्स के लिए उनकी टीम को ऑडिशंस गए थे। तो कहीं ना कहीं मैंने ऐसे सुना था कि उनको जो वॉइसेस सूट कर रही थी उन्हें ही उन्होंने अप्रूव किया। सो इट डिपेंड्स। कई लोग बहुत अच्छी तरह से उनकी वॉइस को मैच कर लेते हैं, तो उन्होंने उनकी वॉइसेस को पेटेंट करवा रखे कि भाई ये मेरी वॉइस यही एक्टर करेगा, इसी से करवाइए। स्पेसिफिकली मतलब इसका इफ वी कम एट द कंक्लूजन ऑफ इट कि कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। अगर उनकी टीम को ये होता है कि हाँ ये वॉइस इसके साथ जा रही है मे बी इन सम अदर लैंग्वेज, तो वहां पे वो अप्रूवल देते हैं। एंड इन स्पाइट ऑफ द दैट पर्टिकुलर एक्टर बीइंग द ब्रांड एम्बेसडर, मतलब आपका कहने का मतलब ये इसका मैं मतलब समझ सकता हूँ कि अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए जो भी वॉइसेस होती है पहले उनका अप्रूवल जाता है, टीम से अप्रूवल लेना पड़ता है पहले। क्योंकि आप देखेंगे रीजनल लैंग्वेजेस में अगर मान लीजिए कोई पेटेंट वॉइस है जिसने मास्टर लैंग्वेजेस किए हैं एज इन हिंदी एंड इंग्लिश, बट ही इज नॉट दैट गुड इन रीजनल लैंग्वेजेस, तो ऑब्वियसली दे हैव नो चॉइस। कभी कभी तो वो कर लेते हैं कि भैया चलो ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द सुपरवाइजर आप उसी वॉइस को यूज कीजिए रीजनल लैंग्वेजेस के लिए। बट बहुत सारे केसेस में उनको होता है कि ठीक है मास्टर लैंग्वेज हो गई, रीजनल लैंग्वेजेस आप नेटिव स्पीकर से ही करवा लीजिए। एंड लेट्स एक्सेप्ट इट, नेटिव स्पीकर्स की भी रोजी रोटी यही है, उनका भी लाइवलीहुड यही है, ऑफ कोर्स, तो उन्हें भी काम मिलता है। तो अच्छी बात यही है कि जितना अगर रीजनल लैंग्वेजेस डब हो रही हैं तो वो नेटिव स्पीकर से ही कराई जानी चाहिए। तो नेटिव स्पीकर्स के लिए जैसे काफी ऐसे वॉइस आर्टिस्ट या डबिंग आर्टिस्ट हैं इन जनरल कि जो सिर्फ एक ही लैंग्वेज पे उनकी पकड़ होती है, मे बी दे आर नॉट दैट फ्लुएंट इन इंग्लिश और हिंदी, वो अपनी एक ही लैंग्वेज पे काम करते हैं। हमने अक्सर देखा है कि वो शिकायत भी करते हैं, हमारे एसोसिएशन के पास भी इस तरह की बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जो उनकी जो भाषा है उसको कोई और डब कर रहा है। एंड लेट्स एक्सेप्ट इट, अगर मैं पंजाबी हूँ, नो मैटर हाउ हार्ड somebody of a non-speaker or a non-speaker tries to dub that in Punjabi, he or she will not be able to get the nuances right. That essence will never come. कितनी भी वो सुपरवाइजर की मदद से वो कोशिश कर ले, लेकिन वो नहीं हो पाता है। इन सम केसेस हम देखते हैं कि जहां अवेलेबिलिटी नहीं है आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट आप किसी और की जॉब मत खाइए। Somebody out there is more deserving than you. You know, he knows or she knows the language. उसको उसकी सारी क्राफ्ट के बारे में अच्छी तरह से पता है कि वो उसकी परफॉर्मेंस को कैसे अपलिफ्ट कर सकता है। बट कुछ ऐसी अनफेयर प्रैक्टिसेस भी हमें देखने को मिल रही हैं जहाँ पे आप क्लाइंट्स के साथ या प्रोडक्शन हाउसेस के साथ थोड़े बजट्स के लिए आप जो है आप किसी और की जॉब के साथ जो है खिलवाड़ करते हैं, किसी और का काम छीन लेते हैं। This, according to me, is not a good practice. One should refrain from doing this. क्योंकि सामने वाला वो सिर्फ और सिर्फ उसी लैंग्वेज पे सर्वाइव कर रहा है, उसकी रोजी रोटी सिर्फ उसी के साथ जुड़ी हुई है, तो उसको वो करने दीजिए, तो उसका हक, पहला हक उसका है। बाकी फिर अगर नहीं अवेलेबिलिटी एज आई सेड, then you can always come in. तो सर फैक्टर्स हो सकते हैं कि मे बी प्रोडक्शन हाउसेस का कि एक ही आदमी अगर हिंदी कर रहा है तो उसको थोड़ी बहुत दूसरी लैंग्वेज आती है तो वहां से करा के हमारा जल्दी काम हो जाए। बट एक्चुअली जैसा आपने सर बिल्कुल ठीक कहा, जब डायलेक्ट की बात आती है ना तो जो नेटिव स्पीकर है उसकी जो पकड़ है वो नहीं ला सकता, मतलब वो नहीं कर सकते। एंड सी लेट मी टेल यू, जब हम बात सोशल मीडिया की कर ही रहे थे थोड़ी देर पहले, तो सोशल मीडिया इन सब चीजों को भी बहुत ध्यान से देखता है। हाँ, आज की डेट में व्यूअर्स जो है वो बहुत ज्यादा जागरूक हो चुके हैं, वो आपके परफॉर्मेंसेस को तो देखते ही देखते हैं, आपकी भाषा के ऊपर भी कमेंट करते हैं। वो उनको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप देखिए जाके कितनी सारी ऐसी रीजनल डब्ड एड्स हैं जहाँ पे वो टिप्पणियां करते हैं। क्योंकि वो आप देखिए, अगर एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए कोई लैंग्वेज डब हो रही है, तो अगर वहां बैठा जो इंसान है अगर उससे आपकी भाषा से वो रिलेट नहीं कर पा रहा, तो आई थिंक द होल पर्पस इज डिफीटेड। सर वन मोर थिंग, हमें थोड़ा मैं एक्टिंग पे बात करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू नो अबाउट दैट। सबसे पहले तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑन वर्किंग इन अ यश राज प्रोजेक्ट, दैट इज द प्रोजेक्ट बाय द नेम मूवी जब तक है जान, एंड शाहरुख खान के साथ आपको उस टाइम पे यू प्लेड अ रोल ऑफ एन आर्मी ऑफिसर इन दैट, सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? wonderful experience, I think experience of a lifetime I would say, क्योंकि
ये आज मेरी फिल्म का सबसे बड़ा रोल जो एक मतलब फीचर फिल्म, और उसकी जो स्टारकास्ट थी और जो डायरेक्ट करने जो जा रहे थे यश चोपड़ा जी, YRF के साथ आज कौन काम नहीं करना चाहता, यू नो पीपल आर ट्राइंग टू वर्क विद YRF, यश राज फिल्म्स। मुझे याद 2012 की बात है ये, मुझे एक्चुअली बुलाया गया था कर्नल के रोल के लिए। उस फिल्म के अंदर कर्नल का भी एक कैरेक्टर था जो सिर्फ एक ही सीन का था। ओके मुझे उसके लिए बुलाया, लेकिन मैंने वेंट फॉर द ऑडिशन तो उन्हें लगा कि मैं कर्नल के रोल के लिए थोड़ा अंडर एज। तो आई गिव द ऑडिशन nonetheless. I came back and after a couple of days I got a call again कि we would like to audition you for a different character in the film. तो ऐसे ठीक है, मैं गया। उन्होंने कहा कि कैप्टन कमल सिंह करके एक कैरेक्टर है, that suits your age. They would like to audition you for that. I said okay. मैंने ऑडिशन किया। उसके बाद उनको जो ऑडिशन पसंद आया, उसके बाद उन्होंने एक और ऑडिशन किया प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ, आर्मी की यूनिफॉर्म। सो शानू शर्मा जी कास्टिंग डायरेक्टर थी। आज शी इज वन ऑफ द लीडिंग कास्टिंग डायरेक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, और मेरी फिल्म्स की कास्टिंग भी करती है। तो उन्होंने कहा कि अमरिंदर योर कैरेक्टर इन द ऑडिशन हैज बीन लाइक्ड बाय यश जी एंड अराउंड 4 नाउ। तो 25 दिन का हमारा ये जो है आउटडोर शेड्यूल था, लेह लद्दाख एंड कश्मीर। तो सबसे मेरे लिए पहला ऐसा शेड्यूल था कि 25 दिन के लिए मैं मुंबई से कहीं बाहर जा रहा था किसी शूटिंग के लिए। बट I was on cloud 9. I mean, when I heard the cast, Shah Rukh Khan sir, Katrina Kaif, Anushka Sharma, and of course Aditya Chopra, and yes, she was the first attraction to work with. yes He unfortunately a last film sabit hui, he actually passed away before the film got released. right जब ये शेड्यूल फिनिश करके आए थे तब वो स्विट्जरलैंड जाने वाले थे एक सॉन्ग शूट करने के लिए, बट आई गेस डेस्टिनी हैड सम अदर प्लान्स फॉर। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मैं ये कहूंगा कि इतने प्रोफेशनल सेटअप में जब आप एक बार काम कर लेते हैं ना हर्ष, आपको कोई और प्रोफेशनल सेटअप समझ में नहीं आता। आई मीन YRF इज नोन फॉर इट, मतलब आपके इनके सेट्स पे जिस तरह से पूरा एक माहौल जो रहता था, इतना प्रोफेशनल है। And then you are learning from stalwarts and superstars like Shah Rukh Khan sir and all. What more do you want as an actor? सबसे एक अच्छी बात तो ये हुई कि जहाँ मुझे ये समझ में आया कि वॉइस प्लेज सच एन इम्पोर्टेंट रोल इन योर करियर एज एन एक्टर ऑल्सो। मेरा फर्स्ट थीम था, अगर आपने ये फिल्म देखी है, द फिल्म ओपन्स विद मी, आई एम नरेटिंग शाहरुख सर हु इज टू माय जूनियर, टू माय सबऑर्डिनेट। ये एक परफेक्ट वर्ड है, और ये वो सीन अगर आपने देखा हो। Aditya Chopra sir is known for guiding you through the scene. He'll sit on the monitor, and if he likes your scene, he won't say you go और go भागा और कि क्या बात है, वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। This is what I heard from people around me on the set, that he will smile. वो शॉट करीब 5 बार हुआ था for technical reasons, not because I fumbled or anything. Thank God. You wouldn't want to do that on a set like that, and people are on the roofs, hundreds of people are watching you because it happened in the middle of the road in Leh Ladakh, and yes, she's sitting right in front of you. वो shot जब हुआ okay हो गया, and again I got to know that he smiled, and I was like, thank God. When we came back to the hotel, our cameraman, we were just talking to each other about the shooting and all. तो उन्होंने mention किया कि अगर आप कुछ वॉइस का कुछ करते हैं क्या, एकदम से आपकी घंटी बजती है कि somebody has noticed your voicing skills. कि आप, मैं ऑलरेडी 2006 से इस प्रोफेशन में हूँ, और somebody has spoken about voicing, not acting. That's what I told him. I said yes, I'm a voice actor also. Of course, he said no wonder. I said, I would like to know, what have you noticed? He said this shot happened for technical reasons, but I saw that each time your dialogue delivery was different from the previous one. You're adding something to it. I mean, lines were the same, okay? You did not change the lines, but then the way you delivered those lines, usme kahin na kahin I could see the difference. And until unless somebody is trained, it is not possible. So I think that itself was a compliment. Ki as a voice actor, I'm on the right path. I'm on the right track. I'm adding something to my acting career also. As an actor, अगर मैं उस चीज को ला पा रहा हूँ अपनी एक्टिंग में, ये होता है। आप अपनी अगर वॉइस डिलीवरी को लेकर, वॉइस की जो आपकी कमांड है,
उसको लेकर अब अगर आप कॉन्फिडेंट है तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस में वो चीज रिफ्लेक्ट हो ही जाती है। एंड अगेन उसके बाद फिर आपको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बढ़ गई। अगर ऐसा है तो ईच सीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम हियर ऑन। राइट। एंड सर वन मोर थिंग, अभी जो आप फिलहाल एक प्रोजेक्ट पे काम कर चुके, रिसेंट एज इन दैट पर्टिकुलर, इज इट अ वेब सीरीज ऑन, एज आई आल्सो मेंशन्ड इन द बिगिनिंग, सरदार वल्लभ भाई पटेल पे जो सीरीज, वेब सीरीज बन रही है, इफ आई एम नॉट, इट्स अ मूवी और अ वेब सीरीज फर्स्ट ऑफ ऑल? I'll tell you, it's a biopic on Sardar Vallabhbhai Patel. It is a television series as well as it is going to be on an OTT platform as well. Okay. For some reason, I will not be able to reveal the name. I'm under a NDA. But yes, I can understand. टेलीविजन की अभी है ये सीरीज और टीवी नेशनल के लिए वो लोग बना रहे थे, बट लेटर दे हैड a deal with an OTT platform also. So yeah, again, I come from Patiala, Punjab. I'm born and brought up there. और जब ये रोल मुझे ऑफर हुआ कि आपको महाराजा याद भोजू सिंह और पटियाला प्ले करना है, what a coincidence. I'm born and brought up in that city. Patiala. Now in the wildest of my dreams, I imagine कि मुझे ये रोल करने को मिलेगा. But I'm thoroughly enjoying it. It's a lovely role to play. Right. And really curious about, ये जब भी वेब सीरीज या जब भी ये जो सीरीज है, ये जब it will be aired, बिकॉज एक और चीज ऐसे मैंने सर कभी पहले आपके सामने जिक्र किया है कि मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ, दैट स्कूल इज नेम्ड आफ्टर सरदार पटेल. आई स्टडीड इन सरदार पटेल विद्यालय, जो दिल्ली में खान मार्केट के पास पड़ता है. और ये मतलब काफी ऐसे, मेरा तो चलो अभी ये कितने ऐसे एक्टर्स हैं, वॉइस एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वहीं से पढ़ के गए. वरुण बडोला जी हो गए, ऋचा चड्ढा, स्वरा भास्कर. So this school was, and on a specific day there used to be Sardar Patel Jayanti. उनके नाम पर ही of course पूरा स्कूल बना था, सेटअप बाय गुजरात एजुकेशन सोसाइटी. तो ये तो वेब सीरीज मेरे हमेशा really curious है कब आने वाली है. Definitely watch it. मैं ऑलरेडी डीडी नेशनल पे ये चल रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आने वाली है. ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, यस. सरदार वल्लभ पटेल played a huge role during the partition. And I think उनका जो उस वक्त जो पूरा एक as a home ministry, was the home minister back then. बहुत उन्होंने जो रोल प्ले किया सारे प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ लाने का, because the country was going to be divided. इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बनने जा रहे थे, एंड पाकिस्तान ऑब्वियसली they wanted कि जितने प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके साथ मिल जाए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल was trying his best कि सारे प्रिंसली स्टेट्स हमारे साथ रहें. सो पटियाला जिनका राजा मतलब महाराजा यादवेंद्र सिंह का जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, वो एक बहुत रिच स्टेट थी, प्रिंसली स्टेट थी. एंड ऑफ कोर्स सारे 6 पंजाब के जो स्टेट में आते थे, तो वो एक बहुत बड़ा उन्होंने रोल प्ले किया था सारे प्रिंसली स्टेट्स को बचाने का और अपने साथ जोड़ने का. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज. That would be interesting also because being, as you mentioned about Patiala, क्योंकि पंजाब का काफी साइड तो ऑफ कोर्स उस साइड जा चुका था, तो उसको यहाँ समेट के रखना really interesting. Right sir. So sir, बहुत अच्छे टॉपिक्स पे हमारी चर्चा हुई. इन ग्रेट टू नो अबाउट योर जर्नी. अब हम एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसपे मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार भी था. हमने काफी सोच भी रखा था कि मतलब एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता. एंड दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI. और ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे AI दस्तक नहीं दे चुका. मैं अगर इन जनरल अगर मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स की भी बात करूँ, वॉइसिंग, वॉइस ओवर, डबिंग, एक्टिंग में भी मैंने ऐसे कई केस स्टडी सुनी है कि हॉलीवुड या फिर जहाँ एक्टर उस समय पे अवेलेबल नहीं था, बट उसके उस वर्जन से, मतलब एक हिसाब से जो विजुअल्स के जरिए AI की मदद से वो शूट करा जा चुका. सो AI इन टर्म्स ऑफ वॉइसिंग, हाउ डू यू लुक एट इट? मैं इसको कुछ इसके अलग अलग अगर हम चैप्टर्स देखते हैं, वॉइस ओवर, डबिंग, वॉइस क्लोनिंग, ये सारे ऐसे टूल्स आ चुके हैं और ये टेक्नोलॉजी का ही दिया हुआ एक हम कह सकते हैं इट्स एन एलिमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इटसेल्फ की थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया काफी चीज है, बट इसने एक और चीज को जन्म दे दिया है. हाउ डू यू लुक एट इट फर्स्ट ऑफ ऑल? I'll be very honest. Voice industry and the craft of voicing needs to be very, very careful
how this AI thing is going to unfold in the coming years. Because क्या है, आज एज वॉइस एक्टर्स हमारा पता नहीं कितना ही डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। AI को सिर्फ डेटा ही चाहिए, जितना ज्यादा उसको डेटा देंगे वो उसके एल्गोरिथम्स के हिसाब से, टूल्स के हिसाब से उसको आपकी जो है वॉइसेस यूज करके वो कुछ ना कुछ उसका ऐसा बना देगा जिसको आप कभी क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी को रोकना किसी के लिए भी संभव नहीं है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते ही जाएगी। एज यू कैन सी, AI जब इट वाज मेकिंग इनरोड्स, उस वक्त जो ये कर पा रहा था और आज जो ये कर पा रहा है, इज अ वास्ट डिफरेंस। Vast difference. You yourself have been studying this particular topic. Right. तो हमने देखा है कि 6 महीने पहले हमें लग रहा था कि हम सोशल मीडिया पे कुछ देखते थे, नहीं यार, कि हमारे यहाँ काम तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ये कर ही नहीं पाएगा जो हम कर सकते हैं। सी, ह्यूमन सेंसिबिलिटीज को मैच करना इतना आसान नहीं है। हैविंग सेड दैट, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो हैं या कुछ ऐसे एक्टर्स को जो जब हम लिप सिंक करते हुए सोशल मीडिया पे देखते हैं AI के जरिए, तब आप कैसे ये कह सकते हैं कि ये नहीं कर पाएगा? हमने ये नहीं सोचा था 1 साल पहले, जिस तरह से वो जो टेक्नोलॉजी को यूज करके, अब मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट दे हैव बीन डूइंग डील्स आफ्टर डील्स, यू नो, टू यूज AI फॉर देयर प्रोडक्ट्स। आज हमने देखा है कि कॉर्पोरेट एवीज जो हम करते थे, ऑलरेडी वी आर सीइंग अ डिप इन कॉर्पोरेट एवीज में। बहुत सारे क्लाइंट्स जो है, दे आर ऑप्टिंग फॉर एन AI काइंड ऑफ वॉइस, सिंथेटिक वॉइस। उनको कॉस्ट कटिंग से मतलब है, उनको आपको नहीं पे करना है, वॉइस एक्टर को नहीं पे करना। तो एज वॉइस एक्टर्स, इफ यू आर एसोसिएटेड विद द सेक्टर ऑफ AVs एंड एडवर्टाइजमेंट्स, you are in a very, very vulnerable state, let me tell you that. People are already feeling the heat. The ones who were totally surviving on AVs, for example, a voice actor was doing like 10 to 12 AVs in a month. It has come down to maybe 4 or 5 now. So it's already put a question mark on your livelihood. So cannot afford to take it light. अभी हम बात करें डबिंग्स की, हमने कितने ऐसे आई थिंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे किसी पॉलिटिशियन की वॉइस उससे मैच करके वो किया गया है। इमोशंस की जहां तक बात है, हम समझते हैं कि इंडिया में बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं, इमोशंस जो हम डबिंग के टाइम यूज करते हैं, यू नो, सैडनेस, हैप्पीनेस, आपका जो एक इमोशनल जो डेप्थ रहती है आपकी परफॉर्मेंसेस के अंदर, उसको मैच करना इतना इजी नहीं है। बट जस्ट लुक एट द वे दिस एंटायर टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। एज वॉइस एक्टर्स, आप देखो यूरोप में, US में, दे हैव ऑलरेडी टेकन मेजर्स। SAG और AFTRA 60 साल के बाद 1 साल आए, एंड दे वेंट ऑन टू अ स्ट्राइक फॉर गुड 180 days। 60 साल के बाद इनको एक साथ आना पड़ा बिकॉज द थ्रेट इज रियली बिग। हालांकि अभी भी उन्होंने जो दे हैव बीन एबल टू गेट इनटू एन एग्रीमेंट विद द प्रोड्यूसर्स और द जो मेन स्टूडियोज हैं, वो ओनली 70% ही है। अभी भी 70% है, उसमें भी कोई ऐसा ये नहीं हुआ है कि भैया हाँ ये आप करेंगे और ये नहीं करेंगे। द डिबेट्स आर स्टिल ऑन। Whereas back in India, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा रेगुलेशन भी नहीं। तो हम as an association, we are trying our level best. We did 2 AI conferences. You are also part of the second one, जिसमें हमने क्लियरली ये चीज देख ली कि कोई भी कंपनी जिसको हमें लग रहा था कि ये आपके बारे में सोचेगी, नहीं, वो अपने बारे में ही सोच रही है। उसको अगर डेटा मिल रहा है कहीं से, तो वो यूज करेगी आपकी वॉइस, और उसके साथ वो क्या क्या खिलवाड़ करेंगे, कैसे खिलवाड़ करेंगे, बिकॉज आपने तो अपना हार्ट एंड सोल पहले बेच दिया है। हमें इंडिया में अगर हम वॉइस एक्टर्स की बात करें, तो हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं रहा है कि जहाँ पे आपको जो है रॉयल्टी मिलती है। आपने 10 साल पहले जो काम किया था, अगर आपकी वॉइस यूज होती है, या आज भी जो हम कर रहे हैं, वेयर इज दैट सिस्टम इन प्लेस? तो एज एन एसोसिएशन हमने कुछ गाइडलाइंस AI कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपनी फ्रेटर्निटी को दी थी कि अगर आपको कुछ भी प्रोजेक्ट ऑफर हो रहा है, चलिए अब तक तो जो हम करते आए हैं उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब से फ्रॉम हियर ऑन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आप किस प्रोजेक्ट के लिए अपनी आवाज दे रहे हैं, कहीं वो AI के लिए यूज होने वाला तो नहीं है? क्या आपने मेक श्योर किया है कि आपने एक अग्रीमेंट बनाया है क्लाइंट के साथ कि सर आप मेरी वॉइस जो है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ही यूज कर सकते हैं, किसी और के लिए नहीं? क्या आपने उसमें एक्सक्लूसिविटी जो है क्लॉज डाला है, मीडियम्स का क्लॉज डाला है? तो आप अपने आप को सेफगार्ड कैसे करेंगे? आज अगर किसी भी आप पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, किसी ऑटोमोटिव व्हीकल के लिए, या किसी भी उसके लिए आप अपनी आवाज देते हैं,
तो वो आपकी आवाज उनके मल्टीपल ब्रांड्स के लिए यूज हो सकती है, एंटिल इटर्निटी यूज हो सकती है। आपने क्या प्रिकॉशन दिया है एज अ वॉइस एक्टर? तो जितनी भी बेस्ट वॉइसेस हैं, परफॉर्मिंग वॉइस एक्टर्स हैं, उनकी वॉइस टेक्सचर, उनका जो वॉइस की जो डेप्थ है, उनका जितनी भी वो सारी चीजों को उठा करके मिक्स मैच करके, देयर आर सो मेनी थिंग्स। डीप फेक्स हो रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क्स हैं, स्पीच डेटा लर्निंग है, स्पीच लर्निंग है। इन सब के थ्रू आपकी आवाज को वो क्या बना के पेश कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड यू हैव नो सिस्टम टू फॉल बैक। बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरह की गवर्नमेंट लेवल पे भी इस चीज को लाया जाए, उनकी नजर में कि भाई हम एक इंडस्ट्री है, हमारी ये लाइवलीहुड, लाखों लोग इस पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर आज हमारा ये क्राफ्ट वाइप आउट कर दिया है एआई ने, तो हम कहाँ जाएंगे? आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वॉइस एक्टर्स डोंट इवन हैव अ प्लान बी टू फॉल बैक ऑन। हम तो यही करते आ रहे हैं ना सालों से, हमारे पास और क्या है? सो हमें बहुत केयरफुली इस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, फिडलिटी को बहुत हद तक अवेयर होना पड़ेगा। जो चीजें मैंने बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि आप डिल्यूजनल मत रहिए कि एआई नहीं कर सकता, एआई assumption नहीं रख सकते। मत करके चलिए assumption कि आप सेफ हैं। नो, यू आर नॉट सेफ। मैं टेक्नोलॉजी को रोकने की बात नहीं करता हूँ। टेक्नोलॉजी इससे पहले भी कई सालों से टेक्नोलॉजीज आई हैं, उनका हमने एडवांटेज लिया है अपनी लाइफ में, आज भी ले रहे हैं। यू नो, इट हैज मेड आवर लाइफ इजी, बट देन फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ आवर क्राफ्ट, ये पहली टेक्नोलॉजी है जिसने हमें चिंता में डाल दिया, जिसने हमें वाकई सोचने पर मजबूर किया है। एंड सर्टनली सर, ये तो एक मैं अलग एग्जांपल ले रहा हूँ। आई हर्ड अ केस ऑफ अ डिजाइनर लूजिंग अ जॉब। वो अचानक उनको फायर कर दिया जाता है और उन्होंने रीजन पूछा, ये वेस्ट की बात है, तो उन्होंने कहा हाँ, तो अभी उनको फिर बताया गया कि आप जो करके दे रहे हो, तो हमारे पास एक एआई टूल है, एआई सॉफ्टवेयर है, जो क्योंकि उस डिजाइनर ने तो ऑफ कोर्स 6 साल कितने साल काम किया था, अब उसने सारा डेटा पड़ा है कंपनी के पास, अब कंपनी ने डेटा दे दिया एआई टूल का, वो तो समझ जाएगा ये कैसे डो बनाता है। वो 30-30 सेकंड 40-40 सेकंड में वो ग्राफिक्स बना के देता है वो टूल। और जब उस डिजाइनर को निकाल दिया गया, फिर उसने कई 10-15 जगह पे अप्लाई किया, उसको पता लगा वहां पे भी यही हो रहा है। तो यहाँ पे इवन द सेलिब्रिटीज आर सफरिंग, बिकॉज़ आप देखो अभी जो हॉलीवुड में जो स्कारलेट का जो केस हुआ है, हाँ, उसमें उनकी वॉइस को किस तरह से मिसयूज किया। अभी ये इट्स अ टॉपिक ऑफ डिबेट कि इसमें क्या निकल करके आएगा, बट देन इट इज हैपनिंग, नोबडी कैन डिनाई दैट। वॉइसेस तो वो यूज कर रहे हैं अपने एडवांटेज के। कुछ लोगों के साथ वो लीगल तरीके से जा रहे हैं, दे आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम। कुछ लोगों के साथ वो बिना उनकी नॉलेज के यूज कर रहे हैं, बिना उनके कंसेंट के यूज कर रहे हैं, बट इट इज हैपनिंग। ग्राफिक्स, एडिटर्स, डिजाइनर्स, इन सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है इसमें। वॉइस एक्टर्स तो मैंने बताया ही मैंने आपको। सो इट इज डेफिनेटली अ थ्रेट। और ये डबिंग में पहले जैसे डबिंग में भी धीरे धीरे करके दिख रहा है कि काफी प्रोडक्शन हाउस, मैं भी कुछ मतलब एज एन, आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ एनी कंपनी, काफी प्रोडक्शन हाउस, बाहर के टीवी चैनल्स, प्रोमिनेंट टीवी चैनल्स जो है इन पार्टनरशिप कर रहे हैं इन कंपनी के साथ। आजकल ऐसे हमें टर्म्स सुनने को मिलते हैं, एआई डबिंग डायरेक्टर। तो ये जो सोचा था उससे कई तेज गुना, मतलब जो ये मशीन लर्निंग जिस स्पीड पे जा रही है। और डबिंग में मुझे, मेरा एक हमेशा, जब से हमें कोई भी चीज को ऑब्जर्व करते तो हमने सोचा चलो वॉइस ओवर कर लेगा, क्लोनिंग आ गई है, लेकिन डबिंग में हमारा भी परसेप्शन होता है एज एन आर्ट, बिकॉज समटाइम्स आई आल्सो सर एज आई थिंक एज एन आर्टिस्ट, मैंने डबिंग नहीं पकड़ पाएगा लेकिन जिस तरह के आज हम वीडियोस देखते हैं, उसने पकड़ना शुरू कर दिया है कुछ हिसाब से। और एक और जो एक स्पेसिफिक टर्म है एआई, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो भी उसके साथ साथ काम कर रही है वहां पे। देखिए, इमोशंस का भी तो आप एज ए सेड कि हमारा इतना ज्यादा डेटा आज की डेट में अवेलेबल है, हमारा ही क्यों, द कॉमन मैन आल्सो हैज बीन यूजिंग अ स्मार्टफोन जिसमें आपका गूगल माइक से लेके सब कुछ होता है, सब कुछ। वॉइस क्लोनिंग हो ही रही है ना आज। अ कॉमन मैन इज फॉलिंग प्रे टू दिस वॉइस क्लोनिंग। कितने लोगों को कॉल किया गया है, कितने लोगों के साथ ये बहुत किस्से फ्रॉड हो चुके हैं। अपने लोगों की आवाज बना के उन्होंने बात की, उनके साथ उनके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लिया गया। तो सेफ तो हम है ही नहीं, हम कैसे कह सकते हैं हम सेफ? आपको नहीं पता जब नेक्स्ट फोन जो आपको आने वाला है वो आपका कोई रिलेटिव साउंड करेगा, लेकिन वो है नहीं। सो थ्रेट तो ऑलरेडी सबको दिख रहा है कि ये चीजें हो रही, बट व्हाट प्रिकॉशंस आर वी टेकिंग टू मेक श्योर ये हमारी लाइफ्स को डिसरप्ट नहीं करे? ठीक है ना? अब मान लीजिए एक पॉलिटिशियन की अगर मैं बात करूं, उसकी ही स्पीच को
वैसे हम डेली ये चीज देखते हैं, उनके वीडियोस मॉक किए जाते हैं। एक्टर्स की भी बात कर रहा हूँ मैं, उन्हीं के वर्ड्स को तोड़ मरोड़ करके जो है पेश किया जाता है सोशल मीडिया पे। तो आप अगर एक पार्टी को, पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आपने वो देखा, तो आप तो उसी को सच मान लेते हैं। यू आर नॉट गोइंग टू गो बैक एंड सी कि हाउ दिस एडिटर मस्ट हैव चेंज्ड हिज टोनैलिटी, या उसमें कैसे उसको एडिट करके उसके वर्ड्स में ये डाल दिया होगा। नोबडी गोस टू सी दैट। सोशल मीडिया देखने वाले कितने लोग हैं जो एजुकेटेड हैं? हम तो लकीर के फकीर है ना, हम तो जो देख लेते हैं उसको सच मान लेते हैं। तो लोगों को एजुकेट करना पहले पड़ेगा कि भैया ये सच नहीं जो आप देख रहे हैं। ये सीन दोस वीडियोस ऑफ द पॉलिटिशियंस अभी रिसेंट में इलेक्शंस के दौरान भी अभी तो इलेक्शंस भी थे, राइट। हमने देखा ही है ना, तो ये तो हो रहा है। आप ये मत मान के चलिए कि वो नहीं कर पाएगा, वो सब कर सकता है। आपको प्रिकॉशंस अभी से लेने पड़ेंगे, आपको रेगुलेशंस लाने पड़े। इवन यूरोप में भी आपने देखा, वहाँ की गवर्नमेंट ने भी कुछ रेगुलेशंस वो लोग लेकर आए, क्योंकि वहां पे सबसे पहले वॉइस एक्टर्स अफेक्ट हुए हैं यूरोप में। हमारे जो सेकंड कॉन्फ्रेंस में फ्रांस की एक क्रिस्टिन इथुबाई करके एक नेशनल टीम आई थी, वो एआई पे रिसर्च कर रही थी। उन्होंने हमें बताया कि ऐसा उनकी भी यूनियन है वहाँ पे, they are also fighting against it, but then they are working on some regulations right now. They were very happy to know that India has also, I mean, the Association of Voice Artists have taken this initiative to educate people. आपको पता ही होगा, अभी recently 3 different newspapers also covered our story. Yes. जो conferences हुई है. So we are trying our level best, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, वरना बात में कि देर हो जाएगी। We have started feeling the heat, वो impact नजर आ रहा है voice acting के क्राफ्ट में। राइट सर, इसमें जितनी अवेयरनेस हो सकती है, बिकॉज जैसे हम एसोसिएशन की अगर बात करते हैं, हम वॉइस एक्टर्स, वॉइस ओवर आर्टिस्ट की बात करते हैं। एक तो क्या कि जैसे इफ आई कंसिडर दिस पर्टिकुलर स्पेस, मुंबई इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी इंडस्ट्री का हब रहा है, रहेगा। दिल्ली, मुंबई, वहाँ पे थोड़ा बहुत लोग इस बात से अवेयर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स, रॉयल्टी, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन काफ़ी वॉइस एक्टर्स ऐसे हैं जो मतलब जिसकी कोई देयर इज नो ज्योग्राफिकल बाउंड्री। अब वो जो उनके साथ जो कंपनीज डील करती है, वो एक हिसाब से मैं टर्मिनोलॉजी यूज कर सकता हूँ, व्हाट्सएप क्लाइंट्स, जिनकी कोई इंटरेक्शन नहीं होती, ईमेल, कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी बात नहीं होती। व्हाट्सएप पे आया, ये स्क्रिप्ट है, ये पढ़ के दे दो, जीपे पे पेमेंट हो जाती है। ना ही वो कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, दे देते हैं, डिलीवर कर देते हैं। और जिन लोगों का ऑफ कोर्स बजट कम हो, उनको तो मोबाइल का भी आउटपुट चल जाता है। तो वहां पे तो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में कोई बात ही नहीं होती होगी। वहां पे तो सीधा है कि आया, पेमेंट हो गई, काम हो गया। और जिसको टोपी घुमानी है, वो तो वैसे ही गायब हो जाएगा उसमें से। तो ऑफ कोर्स दिस इज इट्स अ बिग कंसर्न। और जितना लोगों में अवेयरनेस होती है इसके बारे में, अपने इक्वल राइट्स के बारे में, वो इसके बारे में होनी चाहिए। Some of the companies are actually hunting for those people who don't ask questions. Yes. उन्हें चाहिए वो लोग जो सवाल नहीं पूछे, जो हम दे वो रिकॉर्ड करते हैं बस। वही होता है। आपने अभी देखा होगा जो एक ऑडियो बुक को लेकर भी एक केस हुआ है। अभी ऑडियो बुक का भी केस हुआ है जिसमें उसकी वॉइस को यूज किया गया। चाइना का पहला केस है जो एआई का, वो जो कोर्ट में गया है। हाँ। सूली करके एक वॉइस एक्टर है वहां पे, उनके साथ ऐसा हुआ। उनकी ऑडियो बुक्स उन्होंने जो रिकॉर्ड की थी, उसी का टेक्सचर उठा के जो है उन्होंने उसको मिसयूज किया। फर्स्ट एआई केस इन अ चाइनीज कोर्ट रजिस्टर। अभी पॉडकास्ट का रिसेंटली हमने देखा, इनफैक्ट रिमेंबर वी आर डिस्कसिंग, पॉडकास्ट में भी ऐसा होना शुरू हो गया, एआई पॉडकास्टिंग। जो थोड़ी देर पहले तक लग रहा था कि ये नहीं होगा, हो गया, कर दिया। होने जा रहा है। एक्चुअली जो है, कल को क्या पता हर्ष की जगह एक एआई हर्ष मेरे सामने बैठा हो। नहीं, होप सर कहीं ना कहीं मतलब एआई की इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस की बात आती है, जैसे कहीं ना कहीं लिमिटेशन भी होगी, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, मतलब हम कहीं पे बोलो ना, हमारी इमेजिनेशन से बहुत आगे जा चुका है ये। एंड और जैसे हमारे इंसान की जो एक ड्यूरेशन होती है, एज होती है, एज के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ साथ मैच्योरिटी आती है, हम सीखते चले आते हैं। बट ये जो मशीन लर्निंग है, ये उससे दुगनी तिगनी 5 गुना रफ्तार पे चल रही है। सो नाउ इट इज, हम किसी भी कंक्लूजन पे आ ही नहीं सकते कि ये नहीं कर पाएगा। हम जब सोचेंगे करेगा नहीं करेगा, कर चुका होगा तब तक। मैं बीच में मेरी बात हो रही थी, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो ये कह रहे थे कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर थे जिनको डेवलप करने में हमें करीब 2.5 या 3 साल लगते। Today they are able to do the same process in 6 months. See the cut down period from 3 years,
they are able to do Definitely. this with us. So कैसे आप कह सकते हैं कि AI का आज नहीं कर पा रहा है, क्या गारंटी है वो कल नहीं करेगा? 100% करेगा। जो लोग चैटबॉट्स बना रहे हैं या AI टूल्स को डेवलप कर रहे हैं, वो तो दिन रात इसी में लगे हुए हैं। एक बार टेक्नोलॉजी जब आ जाती है, उससे रोकना बहुत मुश्किल होता है। आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको अवेयर होना पड़ेगा कि भाई ये मेरे ब्रेड एंड बटर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। And I would like to mention our legal counsel of the association, Mr. Akshay Shetty. Yes, He's done right. a fantastic job. I mean, he's been on it. ये पूरा गाइडलाइंस जो उन्होंने तैयार की AI को लेकर के, आपकी कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्लॉजेस होने चाहिए, if at all you are opposed by a client who wants to record your voice for an AI kind of approach. So, sir, it was great talking to you. And finally, we are having this podcast. आपके सफर के बारे में, about your voicing journey, voice acting, modeling, how you got into performing arts. हमारी AI के बारे में चर्चा हुई. And I can say one of the most memorable episodes. और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके. And really glad. The pleasure is all mine. मुझे याद है हम लोग AI कॉन्फ्रेंस के बाद से ही लास्ट अक्टूबर से आई थिंक ट्राई कर रहे थे ये पॉडकास्ट सेशन करने के लिए। Yes, yes. मतलब कुछ एक के बाद एक कुछ ऐसी चीजें हो रही थी, फिर एसोसिएशन के कुछ मैटर्स बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे थे, Right. उसकी वजह से हो नहीं पाया, बट आई एम ग्लैड दैट टुडे वी वर एबल टू डू इट। Finally, we could have it, and I would like to make an announcement to my viewers, to my subscribers, to my listeners that this is the last episode of this season 2. हमने वॉइस ओवर पर चर्चा का पहला सीजन है, वो एक तरह से सोलो था। जब मैं जितना मैंने वॉइसिंग के बारे में जितना रिसर्च किया, जाना, मैं टिप्स वगैरह माइक्रोफोन के बारे में शेयर करता था, तो उसका पहला सीजन था, सोलो था पूरी तरह से, एंड दैट वाज इन द ऑडियो मोड। इन फैक्ट सेकेंड वाला सीजन आई स्टार्टेड विद इंटरव्यूज। आई स्टार्टेड interviewing my, first of all, of course, my known artists, क्योंकि मैं भी थोड़ा इतना comfortable नहीं था। Of course, I started into interviewing people and all. उसके बाद धीरे धीरे करके I'm really I can say I'm blessed. I was lucky that I could get a chance. इतने सारे लोगों से मैं बात कर पाया, starting from मोना शक्ति मैम, संकेत मात्रे हो गए, राजेश कावा, दर्पण मेहता सर was there. In fact, sir, और the list is too big now, sir. 36-37 एपिसोड्स तक हो चुके हैं, और अभी जो लास्ट एपिसोड है, इनफैक्ट वो अभी आया नहीं है। अभी जब हमारा ये वाला एपिसोड सर लाइव होगा तब तक वो आ चुका होगा उससे पहले। एंड आई गॉट अ चांस टू इंटरव्यू मिस्टर शमी नारंग। और मतलब मैं तो बहुत मतलब ये होता है ना सर, एक बैरिटोन वॉइस, आप सर ऑफ कोर्स यू कैन कोरिलेट वो इस तरह बड़ा हुआ है उन्हीं से। आई मीन दूरदर्शन पे उनको सुनते आए हैं, शमी नारायण जी, दैट वॉइस स्टिल रिंग्स इन योर हेड। मतलब मैं यहाँ पे ऐसे ना, वो एक हिसाब से आवाज गूंज रही थी जब मैं बात कर रहा था, और बिल्कुल मेरी आवाज निकलनी बंद हो गई थी सर। ऑनेस्टली हमने आपके एपिसोड में हमने खुल के बात की कुछ समय, तो सर के साथ जब किया, अभी तो जब आएगा हमारा एपिसोड, कुछ टाइम में तो मैं ऐसे आवाज में खो गया था। होता ना जैसे कि एक तो हम दूसरी चीज ये बीइंग ब्रॉट अप इन दिल्ली, हम मेट्रो में ट्रैवल करते आए हैं, और ऑफ कोर्स उसी आवाज को हम सुनते आए हैं, तो थोड़ा भी अलग सा फैसिनेशन हो जाता है। Yes, of course. You're stalwart. I mean, as I said, कि not only yours, but हमारा भी कहीं ना कहीं बचपन उनसे बहुत जुड़ा हुआ, उनकी आवाज सुनते हुए बड़े हुए हैं। So we definitely look at him with a lot of awe. हम voice acting के लिए वो एक रोल मॉडल है, बहुत एक उन्होंने अपनी छाप छोड़ी अपनी आवाज से, जो बहुत बड़ा नाम है शमी नारायण जी आज। And so luckily, and so further, another announcement in the upcoming season. कब होगा अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है सर, बट मैं अपने व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को, लिसनर्स को, जो भी इस एपिसोड को सुन रहे हैं एनी पर्टिकुलर पॉडकास्टिंग ऐप, थर्ड सीजन होगा जरूर, बट वी विल हैव इट, आई कैन से फेस टू फेस, इन पर्सन, जब हम कहीं पे बैठ के बात करते हैं, एंड वी विल हैव मोर ऑफ पैनल डिस्कशंस, क्योंकि इस समय पर इंडस्ट्री का साथ में आना बहुत जरूरी है। जितने डिस्कशन, जितनी चर्चाएं इसके बारे में और हो सकती है। So, sir, yeah, sir, please. Definitely, as an artist and also one of the office bearers of the association, definitely हम जब भी आप नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं सीजन, हमारी बात भी हुई थी इस बारे में कि अब वो समय आ गया है जब हमें अपनी फ्रेटर्निटी को 1-to-1 जो है ना उनको अवेयर करना है, उनको और एजुकेट करना है AI को लेकर के। So I see this as an opportunity for me and of course some of my office bearers of the association and of course our legal counsel Mr. Akshay Shetty, कि हम एक सेशन करें और हम लोगों को बताएं
क्योंकि there's a lot of uncertainty right now as to how things are going to unfold. तो हमें उनको थोड़ा सा एक सांत्वना भी देनी है कि भाई डरना नहीं है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप खुद को एजुकेट करके चलेंगे, आप समझेंगे चीजों को कि ये चीज मेरे लिए सही है या सही नहीं है, तो आई एम श्योर यू कैन सेफगार्ड योरसेल्फ। आपकी आवाज जो है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यही आपका सब कुछ है। उसे सेव करने के लिए, उसे सेफगार्ड करने के लिए आपको जो भी करना पड़ेगा, हमें एक साथ उसके लिए आना भी पड़ेगा। आप एक या दो लोग अगर जाएंगे आवाज करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर नहीं पाएंगे। होगा सर। वी हैव द पावर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, वो हमें करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्राफ्ट बचा रहे, आपकी रोजी रोटी जो है बची रहे, यू विल हैव टू मेक एफर्ट्स। आप इसको और लाइटली मत लीजिए इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। राइट। Hopefully, I'm looking forward, Harsh, and I must congratulate you. आपने बहुत पिछले थोड़े समय में जो अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से लोगों को अपने शो पर आप लेकर आए हो, बहुत अच्छा है। मतलब आप जिस तरह से ग्रो कर रहे हो, आपका शो जो है इट इज गोइंग ऑन अनदर लेवल नाउ, एंड आई वांट टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एक दिन हम होंगे कि हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी यार, हर्ष हमारा इंटरव्यू देते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। रियली मीन इट, यू आर डूइंग रियली वेल। और इसी तरह के और भी बहुत सारे शोज करते रहो और वॉइस इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहो, हमारे साथ जुड़े रहो। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। एआई की कॉन्फ्रेंस के दौरान भी आपने जो प्रेजेंटेशन दिया था, वो इट वाज एन आई ओपनर, ऑफ कोर्स, एंड द स्टैटिस्टिक्स दैट यू हैड शेयर्ड दे वर स्टार्टलिंग टू से द लीस्ट। सो इस तरह से मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जो है, लोग इस क्राफ्ट से जुड़े हैं लेकिन वो कुछ कर रहे हैं कि मैं अपना क्या रोल निभाऊं। आज हम भी जो एसोसिएशन के लिए कर रहे हैं, वी आर नॉट गेटिंग पेड एनीथिंग, बट इट इज आवर ड्यूटी टू गिव बैक टू द इंडस्ट्री व्हिच हैज गिवन यू सो मच। यस, इट्स आवर वे ऑफ पेइंग बैक टू। हर बंदे का वो हक, हक नहीं, हर बंदे की वो ड्यूटी बनती है कि वो भी इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे और अपने क्राफ्ट के साथ जुड़ी चीजों को लेकर थोड़ा सा और सीरियस हो जाए। डेफिनेटली सर। और ये जो मेरा पॉडकास्ट है वॉइस ओवर पर चर्चा, मैंने आपको सर बता भी रखा मेरे दूसरे वाले पॉडकास्ट के बारे में, इट्स बाय द नेम द एजे शो, जिसपे मैं अलग अलग वेराइटीज एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप ओनर्स, इन्फ्लुएंसर्स में उनके साथ जो है इंटरव्यू करता हूँ। वो भी मेरा प्लान अब इन पर्सन का ही है, लेकिन ये जो शो है सर वॉइस ओवर पर चर्चा, ये हमेशा मेरे दिल के करीब रहा है, रहेगा। बिकॉज ये शो है, बिकॉज आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी, आई हैड दिस नेटवर्क ऑफ वॉइस आर्टिस्ट, मैं लोगों की टच में आ पाया कि इस पॉडकास्ट ने मुझे सिखाया है बिकमिंग अ पॉडकास्टर, और ऑफ कोर्स बाय ऑलवेज बीइंग अ वॉइस आर्टिस्ट बाय हार्ट। ये हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा, और फ्यूचर में हम जितनी ऐसी डिस्कशंस कर सकते हैं, चर्चाएं कर सकते हैं टू गेट टू रेज मोर एंड मोर अवेयरनेस, वो जरूर रहेगा सर फ्यूचर में। थैंक यू हर्ष, बहुत कुछ करेंगे साथ में, आई एम वेरी श्योर। लगे रहो आप भी। थैंक यू सो मच सर ऑन योर शो, इट वाज सच अ प्लेजर टू टॉक। I am our honor sir, and I this could not have been better, like इससे बढ़िया जो हम एक सीजन 2 की जो एक एंड हम कर रहे हैं, बट अब ऑफ कोर्स एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इसका एक एंडिंग पॉइंट है इसे एंड नहीं करेंगे, बट हाँ सीजन 2 का एक एंड है कि हमने हाँ ऑनलाइन बहुत चर्चाएं कर ली, अब हम कुछ और साथ में बैठ के अब चर्चाएं करेंगे। बिल्कुल सर थैंक यू सो मच हर्ष, थैंक यू सो मच सर।